हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं सी का, दैट इज ऑन ए फॉर लूप। कल हम लोगों ने इफ एल स्टेटमेंट खत्म किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ फॉर लूप? इफ यू वांट टू वर्क ऑन ए रेंज एंड फॉर दैट रेंज वी यूज ए फॉर लूप। ओके, सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप? सी इट्स अ लूप। सो सी के अंदर दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, दैट इज इफ एल स्टेटमेंट एंड स्विच स्टेटमेंट। एंड लूप्स तीन टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। तो उसमें से आज फर्स्ट लूप हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज फॉर लूप। ओके, सो व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप? So write down syntax. It's a for. So first it's a initialization, next it's condition, and then next is expression. Okay, so it's a expression. Okay, and then just write down statements here and then close it. Okay, so what is the meaning of initialization? So initialization means from where we start, condition means till what step we go, and expression means till that step what operation we perform. It's a increment or it's a decrement. Okay, so and statement means we are using printf and scanf here as a statement. Okay, that's it. Okay, so अभी directly हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर प्रैक्टिकल के ऊपर जाते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे मैं यूज करूंगी इट्स इंक्लूड std। कोई भी प्रोग्राम हो सी का, इतना पार्ट आप लोगों का कंपलसरी आने वाला है। ओके, सो अभी हम लोग एक फर्स्ट असाइनमेंट करने वाले, दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 10 numbers. Okay, I want to print the first 10 numbers. So for loop में रन करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए, वो लिया मैंने I. Then next is for. So value of I equals to 1. कहाँ तक जाएगा? So it's less than or equal to 10 till the value of I increment. Okay, see, initialization means from where we start. I want to print first 10 numbers, so मैंने उसको initialize किया by 1. कहाँ तक जाएगा? तो that is 10 because I want to print first 10 numbers. And till 1 to 10 it's a increment operation, and that's why we use a plus plus. Okay, so there is again a difference between plus plus and minus minus, so we will discuss it in next session. So what is the meaning of I plus plus, plus plus I minus minus, and minus minus I? Okay, so see, I want to print it, so I am using printf. It's a %d, integer इसलिए %d slash n, किसका वैल्यू प्रिंट करना है? दैट इज I. So just save it and control R run it. Okay, so see, it gives me 1 to 10 numbers. Okay, okay, so this is the table which is used to print first 10 numbers. Okay, done. Next is what? Write a program to print table of entered number. Okay, किसी कोई भी नंबर मैंने एंटर किया तो उसके करस्पॉन्डिंग टेबल आना चाहिए। सो सी, टेबल कब मिलता है? कोई भी नंबर को अगर हम लोग 1 to 10 की रेंज से मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी गेट ए टेबल। ओके, सो 1 to 10 रेंज तो मेरा यहाँ पे है। यूजर से एक नंबर लेना है जो हम लोग रन टाइम एक्सेस करेंगे, एंड यहाँ पे मैंने प्रिंटफ में लिखा एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर. Okay, I want to scan it, and that's why we use the scanf function. Then it's a %d comma and that particular n. Okay, and I want to multiply that n by 1 to 10 numbers, so just save it, control R run it. See, वो पूछ रहा है मुझे enter any number. Suppose मैंने यहाँ पे enter किया 23, it gives me table of 23. So whatever number you are writing now, it gives you table of that particular number. Suppose it's a 5, then it gives me table of 5. Suppose I'm inserting 8, then it gives me table of 8. Okay, so this is about the for loop. See, work कैसे करेगा? I equals to 1, 1 less than or equal to 10, condition करेक्ट है, प्रिंट करेगा 1 को. Okay, so इस वजह से जाएगा till 10. Okay, so अभी हम लोग डिफरेंस देखते हैं, what is the meaning of that I plus plus and plus plus I. Okay, so see, एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे. इट्स इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे लिख दिया मैंने, इट्स अ वर्ड मेन. Okay, and then I am accepting two numbers. First is A, B, third one is C, which is used to store the answer. A equal to 100, B equal to 200, and C equal to, suppose I am writing here it's a E plus plus. Wait, basic level पे check करते, what is the meaning of E plus plus? Suppose I have only one number, that is E. Okay, so I am printing here, it's a printf %d comma, then I am using it as a A plus plus. So what is the answer? See, A plus plus. What is the answer? Just save it, control R run. See, it gives me 100 as it is. So what is the meaning of plus plus? It gives you original value first and then print, then increment it. So suppose I am printing here
it's a new line, then it's a percent d, and I predict the value of a here. So what happened? See, it gives me 100. Okay, so just run it. So control R. See, it gives me 100 and 101. So पोस्ट इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? वो जिस पोजीशन पे है उसको ओरिजिनल वैल्यू से ही रखेगा, जब नेक्स्ट पोजीशन पे जाएगा तो इंक्रीमेंट किया हुआ वैल्यू लेके जाएगा. ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ ए प्लस प्लस. फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे किया होता ए प्लस प्लस, एंड सपोज आई एम प्रिंटिंग हियर इट्स अ प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा ए. ओके, so now it gives me 101. Okay, just control R run करो. See, it gives me 101. Okay, so जिस स्टेप पे है उस स्टेप पे इंक्रीमेंट नहीं करेगा. स्टेप जैसे तुम लोग चेंज करते हो तो इंक्रीमेंट होने वाला वैल्यू लेके जाएगा. ओके, दैट इज द पर्पज ऑफ ए प्लस प्लस. ओके, देन नेक्स्ट इज प्लस प्लस ए. सो ए प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है? ओरिजिनल रखेगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा. एंड प्लस प्लस ए का मीनिंग क्या होता है? पहले ही इंक्रीमेंट कर देगा. अगर मैंने यहाँ पे ए प्लस प्लस लिखा होता तो इट गिव्स मी 100, बट अगर मैंने प्लस प्लस ए लिया है तो वो मुझे 101 देगा वहां पे. ओके, इट्स अ कंट्रोल आर. ओके, सो 101 इसका मीनिंग क्या होता है? ये पहले ही इंक्रीमेंट करेगा एंड देन उसको प्रिंट करेगा. एंड पोस्ट इंक्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है? ओरिजिनल रखेगा खुद को, देन जब आगे जाएगा तो इंक्रीमेंट वैल्यू लेके जाएगा. सेम फॉर माइनस माइनस. अगर आप लोगों ने यहाँ पे माइनस माइनस किया तो देन इट गिव्स यू 99. ओके, और अगर मैंने यहाँ पे माइनस माइनस किया देन इट गिव्स मी 100 एज इट इज, बिकॉज ये ओरिजिनल पहले लेगा, डिक्रीमेंट वाला आगे पास करेगा. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. तो एक सिंपल से एक थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं हम लोग. मैंने यहाँ पे एक लिया वेरिएबल ए बी एंड थर्ड लिया सी. सपोज ए का वैल्यू लिया मैंने 10, बी का वैल्यू लिया यहाँ पे 20, सी इक्वल टू किया इट्स ए प्लस प्लस, यहाँ पे लिया इट्स अ प्लस प्लस बी, प्लस यहाँ पे लिया इट्स अ बी प्लस प्लस, एंड प्लस यहाँ पे लिया मैंने इट्स अ ए माइनस माइनस, एंड प्लस यहाँ पे लिया मैंने इट्स अ माइनस माइनस ए. सो टेल मी व्हाट इज द आंसर. प्रिंट एफ. थोड़ा सोचो, टाइम लो, एंड देन टेल मी. चाहे तो वीडियो पॉज करो, खुद से कैलकुलेट करो, एंड देन जो आंसर मैं अभी बताने वाली हूँ उसके साथ टैली करो. ओके, अगर आपका मेरा आंसर मैच हो रहा है उसका मीनिंग आपको कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आया. अदरवाइज तुम लोगों को इसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा के एग्जांपल्स लेके प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओके, सो सी, इस प्रोग्राम में क्या होता है? सपोज आई एम राइटिंग इट हियर. नीचे लिखती हूँ प्रोग्राम के. ओके, ओके, सो दिस इज न्यू लाइन. सी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? इट्स अ 10. मैंने ए प्लस प्लस किया तो वो ओरिजिनल वैल्यू देगा 10, बट जब आगे लेके जाएगा दैट इज 11. यहाँ पे किया प्लस प्लस बी, इट गिव्स मी 21, प्लस यहाँ पे किया बी प्लस प्लस, इट अगेन गिव्स मी 21, प्लस यहाँ पे किया ए माइनस माइनस, यहाँ पे वैल्यू उसका 11 लेके गया, एक से माइनस किया 11 एज इट इज रखेगा, बिकॉज माइनस आगे जाके करेगा. सो ए बिकम्स 10. यहाँ पे माइनस माइनस ए किया, सो इट बिकम्स 9. सो व्हाट इज आंसर? इट्स 10 प्लस 21. कैलकुलेट करो कितना आता है. सो जस्ट ओपन द कैलकुलेटर. ओके, सो इट्स 10. मिनिमाइज करके रखते हैं हम लोग इसको. सो व्हाट इज द वैल्यू? इट्स 10 प्लस 21 प्लस 21 प्लस 11 प्लस 9. ओके, सो इट गिव्स मी 72. सो अभी हम लोग इसको सेव करके रन करते हैं. ओके, तो सी, इट गिव्स मी 72. करेक्ट है, मैच हो रहा है हमारे टैली के साथ. ओके, सो इस वजह से ये रन होता है. सो आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा के एग्जांपल्स लो तुम्हारे लेवल पे एंड ट्राई करो. सो दिस इज अबाउट द प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. सो इस वजह से ये एग्जीक्यूट होगा. ओके, क्लियर है? सो हम लोग फॉर लूप में आई प्लस प्लस का यूज क्यों करते हैं? आई वॉन्ट टू इनिशियलाइज फर्स्ट एंड देन बाद में इंक्रीमेंट होने वाला वैल्यू आना चाहिए. दैट्स व्हाई वी यूज है आई प्लस प्लस. यानी ओरिजिनल भी लेगा एंड इंक्रीमेंट होने के बाद आगे एक्सीड भी करता जाएगा. ओके, ओके, सो दैट इज अबाउट प्लस प्लस एंड माइनस माइनस. नेक्स्ट थिंग इज, कल के सेशन में एक मैंने छोड़ दिया था, दैट इज टर्शियरी ऑपरेटर. सपोज किसी ने तुम लोग को पूछा कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट मैक्सिमम नंबर. सपोज इट्स अ क्वेश्चन. ओके, मैंने यहाँ पे लिखा write a program to find out, write a program to find out maximum number between two numbers, between two numbers without using third variable. Okay, oh sorry, without using if else statement. Sorry, it's
by mistake without using if else statement. ओके, सो क्या बोला है, if else statement यूज नहीं करना है, फिर भी दोनों में से मैक्सिमम नंबर आना चाहिए. ओके, तो जब भी तुम लोगों को if else यूज नहीं करना है, सो इन दैट सिनारियो वी यूज ए टर्शियरी ऑपरेटर्स. ओके, so first thing I want to accept two number, that is x and secondly a y, and for storing answer I am using a variable z. First accept that two number to the user, so printf, it's a enter x and y. I want to access that number to the user, so it's a scanf %d. फर्स्ट नंबर लिया मैंने यहाँ पे, इट्स x. सेकेंड नंबर यहाँ पे लिया, इट्स y. देन नेक्स्ट z इक्वल टू x ग्रेटर देन है y, देन प्रिंट करो, देन प्रिंट x, अदरवाइज प्रिंट y. ओके, सी, अगर x y से बड़ा है तो प्रिंट होगा x, अदरवाइज प्रिंट होगा y. सो दैट इज if मीन्स क्वेश्चन मार्क एंड कोलन मीन्स सेल्स पार्ट. सो मैक्सिमम नंबर प्रिंट करना है मुझे, सो मैक्स नंबर इक्वल टू %d and which is stored inside a variable z. Okay, just save it and run it, control R. Okay, so suppose I am inserting two number here, that is 33 and 22. See, it gives me max number equal to 33. Okay, so just change the sequence 88 and 99. Okay, so I want to rerun it again. So it's a 99, it's a 66. See, it gives me. Okay, and suppose I am using it as a small number layer first, and then next is 89, then it gives me 89. Okay, so these are the tertiary operators. If you don't want to use the if else statement, then go through the tertiary operator. Clear? Okay, so now we will move again to our current session, that is for. Okay, so हम लोगों ने अब तक 1 to 10 के नंबर प्रिंट करने का प्रोग्राम लिया, टेबल ऑफ एंटर्ड नंबर किया. अभी नेक्स्ट सपोज राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट all even numbers between 1 to 100. Okay, 1 to 100 में से सारे even numbers मुझे चाहिए. Okay, and in that scenario we use it's a hash include stdio.h. next it's a main function, and inside a main, suppose I am using a number, I want to find out all even numbers, and for loop we use a one variable, that is I. So inside a for loop I am using for I equals to 1, I less than or equal to, it's 100, so I am using 100 till the value of I increment. Okay, next here, if I modulus 2 equal to 0, then see what is the even number. if अगर उस पर्टिकुलर रेंज को 2 से तुम लोगों ने डिवाइड किया है, एंड इफ यू गेट द रिमाइंडर 0, देन जस्ट यूज printf, it's a %d slash n comma, then print that I. Okay, so just save it, control R, run it. See, you got all the even numbers between 1 to 100. Okay, so this is the logic about even number. सपोज तुम लोगों को यही ऑड के लिए करना है, देन यू यूज ए नॉट इक्वल टू साइन. सो नॉट इक्वल टू से क्या होगा, यू गेट ए odd numbers. Okay, see, you get all the odd numbers. Okay, so this is about the even and odd. Okay, so next is what, next program is write a program. Okay, so it's write a program to print sum of first 10 numbers. I want to print the sum of first 10 numbers. So see, there is a rule, if sum occur in any loop, then initialize supporting variable to 0. See, if sum occur in any loop, then initialize supporting variable to 0. If multiplication occur in any loop, then initialize supporting variable to 1. Variable to 1. So what I want to print the sum of first 10 numbers. So यहाँ पे 1 to 10 number लूँगी, जैसे मैंने तुम लोग को बोला, if sum occur in any loop, then initialize supporting variable. So sum is my supporting variable, कुछ भी नाम ले सकते हो, मैंने उसको initialize किया 0 से. Then यहाँ पे मैं लिखूंगी sum equal to it's a sum plus that particular number. And see, जब भी तुम लोग
एक यूनिक आंसर निकालना चाहते हो, सी 1 to 10 का एडिशन किया तो इट गिव्स मी 55, दैट इज माई ओनली वन नंबर। तो मुझे रेंज नहीं चाहिए, जब तुम लोग को रेंज नहीं चाहिए होता है ना, देन प्रिंट मैसेज आउटसाइड ऑफ ए फॉर। सो मैंने यहाँ पे लिया सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स इक्वल टू, सी इट्स इक्वल टू परसेंट डी विच इज स्टोर्ड इनसाइड अ वेरिएबल सम। सो जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर रन करो। सो सी इट गिव्स मी इट्स अ 55। सो अभी ये कैलकुलेट कैसे होगा, सी यू इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 0। अभी हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे रन करना है वो देखते हैं। So, जब भी स्टेप 1 पे होगे तुम लोग, सो योर वैल्यू ऑफ सम इक्वल टू 0। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, सो आई इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या, यस इट्स ट्रू, ट्रू है, देन तुम लोग फॉर लूप में जा रहे हो। सम इक्वल टू होगा सम, सो करंटली वैल्यू सम का क्या है 0, प्लस आई का वैल्यू क्या है 1, सो नाउ सम बिकम्स 1। ओके, अभी नेक्स्ट टाइम तुम लोग जाओगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 में जाते हो तो सम का वैल्यू वो है तुम लोग के पास 1, देन आई इंक्रीमेंटेड, सो वैल्यू ऑफ आई becomes 2, 2 less than or equal to 10, condition true है, yes it's true, then sum equal to sum, what is the current value of sum, that is 1, so 1 plus 2 it becomes 3। okay, so इस वजह से तुम लोगों को टिल 10 तक जाना है। सो लास्ट जब तुम लोग 10 तक जाते हो देन यू गेट 55 and this is your final answer, just save it, control R, run it, it gives you 55। okay, hello, okay, so नया प्रोग्राम है, so it's suppose I want to find out factorial of entered number, so what is the meaning of factorial, yes, okay, so what is factorial, factorial का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल सपोज एक नंबर लिया है मैंने दैट इज 5, तो 5 फैक्टोरियल कैसे मिलेगा तुम लोगों को, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सो इट गिव्स मी 120। ओके, सो दैट इज फैक्टोरियल। कुछ कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं 5 फैक्टोरियल अगर मैंने लिखा तो इट गिव्स मी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड इट गिव्स मी 120। ओके, सो दिस इज द फैक्टोरियल एंड सी, जैसे मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में सम लिया था तो सम का रूल क्या है, इनिशियलाइज सपोर्टिंग वेरिएबल टू 0 एंड इफ मल्टीप्लीकेशन ना कर देन इनिशियलाइज सपोर्टिंग वेरिएबल बाय 1। ओके, सो अभी मुझे यहाँ पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम करना है, सो आई एम यूजिंग इट्स अ हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट लिया मैंने यहाँ पे मेन, एक पर्टिकुलर नंबर है उसका फैक्टोरियल निकालना है, वो नंबर लिया मैंने n, फॉर लूप में रन करने के लिए एक वेरिएबल लिया i एंड आंसर स्टोर करना है उसके लिए एक वेरिएबल लिया फैक्ट, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए उसको इनिशियलाइज किया 1 से। यूजर से एक नंबर लेना है, सो प्रिंटफ में यहाँ पे लिखूंगी एंटर एनी नंबर, स्कैन करना है उस नंबर को, सो इट्स स्कैन %d कॉमा एंड दैट पर्टिकुलर नंबर दैट इज n। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप में, सो सी सपोज कंसिडर करो n नंबर का वैल्यू मैंने 5 लिया है तो i इक्वल्स टू होगा 1, i कहाँ तक जाएगा, लेस देन और इक्वल टू दैट पर्टिकुलर नंबर टिल द वैल्यू ऑफ i इंक्रीमेंट। ओके, फैक्टोरियल के लिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सो फैक्ट इक्वल टू लिखेंगे फैक्ट इंटू i। अगेन फाइनल रिजल्ट चाहिए, एक ही वैल्यू चाहिए, सो लूप से बाहर आके प्रिंट करना है प्रिंट एफ स्लैश n factorial equal to %d which is stored inside a variable fact, done, just save it, control R रन करना है इसको। सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया 5, so it gives me it's 120, अगेन मैंने एक नया नंबर लिया सपोज इट्स 8, then it gives me 40320। ओके, सो इस वजह से आएगा फैक्टोरियल। तो अभी फैक्टोरियल के केस में क्या होता है, सी कंसिडर करो मैंने यहाँ पे नंबर का वैल्यू लिया है 5, अभी ये रन कैसे होगा। ओके, सो फैक्ट इक्वल टू 1, सो फर्स्ट स्टेप होगा ये मेरा, सो दिस इज माय स्टेप 1, स्टेप 1 में मैंने यहाँ पे n का वैल्यू लिया है 5 और फैक्ट इक्वल टू 1। सो अभी फॉर लूप में जाओगे तुम लोग, i इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, यस इट्स ट्रू, तो आगे नहीं जाएगा बिकॉज इट्स अ पोस्ट इंक्रीमेंट, कंडीशन करेक्ट है, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, तो तुम लोग फॉर लूप में जाओगे, फैक्ट इक्वल टू होगा फैक्ट, सो दैट इज 1 इंटू करंट वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 1, इट गिव्स मी 1। ओके, तो फर्स्ट स्टेप पे थे तब तुम लोग को फैक्ट का वैल्यू मिला 1, अभी जाओगे तुम लोग स्टेप 2 में, स्टेप 2 में जाते हो तो n बिकम्स माइनस माइनस। ओके, सॉरी, n का वैल्यू क्या होगा अभी,
यस, हाँ, सी एन का वैल्यू 5 है ना अभी हमारे पास, तो यहाँ पे भी होगा इट्स अ 5। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्ट, फैक्ट का वैल्यू मेरे पास 1 एंड आई का वैल्यू यहाँ पे प्लस प्लस हो रहा है, सो आई जो है इस कंडीशन पे हो जाएगा 2। तो तुम लोग चेक करोगे 2 लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, यस, कंडीशन ट्रू है, तो तुम लोग आगे जाओगे फॉर लूप में। फैक्ट इक्वल टू होगा फैक्ट, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ फैक्ट, दैट इज 1 into what is the value of pi, it's a 2, so it gives me 2। okay, then तुम लोग जाओगे यहाँ पे स्टेप 3 पे, स्टेप 3 पे जाते हो तो i का वैल्यू होगा 3, 3 लेस देन और इक्वल टू 5, यस, कंडीशन ट्रू है तो तुम लोग आगे जाओगे। फैक्ट इक्वल टू हो जाएगा फैक्ट, सो फैक्ट का वैल्यू क्या है, इट्स अ 3, नो, इट्स अ 2 इंटू आई का वैल्यू क्या है 3, सो इट बिकम 6। ओके, देन नेक्स्ट जाओगे तुम लोग स्टेप 4 में, स्टेप 4 में जा रहे हो तो फैक्ट का वैल्यू कितना मिला है तुम लोग को 6, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 4। तुम लोग फिर से फॉर लूप में जाओगे, आई इक्वल्स टू 4, 4 लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, है, सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट, ट्रू है, तो यहाँ पे जाओगे फैक्ट इक्वल टू फैक्ट, फैक्ट का वैल्यू कितना है 6 इंटू आई का वैल्यू कितना है 4, सो इट बिकम्स 24। ओके, इट बिकम्स 24, डन। देन नेक्स्ट जाओगे तुम लोग स्टेप 5 में, स्टेप 5 में जा रहे हो तो फैक्ट का वैल्यू कितना है मेरे पास, इस 24, आई का वैल्यू कितना है मेरे पास 5। तुम लोग फिर से फॉर लूप में जाओगे, आई इक्वल्स टू 5, 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, सी 5 लेस देन और इक्वल टू, लेस देन नहीं है बट इक्वल टू है, सो यहाँ पे आएगा 5 लेस देन और इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो तुम लोग लूप में जा रहे हो। फैक्ट इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फैक्ट इज 25 इंटू 5, इट बिकम्स 120। ओके, देन जाओगे तुम लोग स्टेप 6 में, सो स्टेप 6 में जा रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। ओके, फैक्ट का वैल्यू कितना है तुम लोग का, इट्स 120। ओके, तुम लोग जा रहे हो फॉर लूप में, आई इक्वल टू 6, 6 लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, नो, इट्स अ फॉल्स, फॉल्स है तो लूप में जाओगे नहीं, लूप से बाहर आओगे। ओके, एंड लूप से बाहर आओगे तो तुम लोगों के पास फैक्ट का फाइनल वैल्यू क्या था, इट्स 120, तो उसको तुम लोग प्रिंट कर दोगे। ओके, सो इस वजह से तुम लोगों का प्रोग्राम रन होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट द फैक्टोरियल, क्लियर है। अगर ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है तो नोट कर सकते हो तुम लोग, दिस इज अबाउट द फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट इज नया प्रोग्राम लेना है, इट्स राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ एंटर्ड नंबर। ओके, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट फैक्टर्स ऑफ एंटर्ड नंबर। अभी थोड़ा ठीक से देखो, फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 6, तो 6 के फैक्टर्स कौन से, 1 2 3 6, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6, सो इट गिव्स मी रेंज अगेन, करेक्ट है ना, मैंने 6 को डिवाइड किया तो इट गिव्स मी 1 2 3 एंड 6। तो यहाँ पे मुझे लिखना है इट्स इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे लिया मैंने इट्स वर्ड मीन, एक नंबर चाहिए मुझे यूजर से, वो लिया मैंने n, फॉर लूप में रन करने के लिए एक वेरिएबल लिया i। अभी यूजर से लेना है वो नंबर, सो प्रिंटफ यहाँ पे लिखा एंटर एनी नंबर, स्कैन करना है मुझे, सो इट्स स्कैन एफ %d कॉमा, कौन सा नंबर लिया है मैंने, दैट इज एन। ओके, अभी हम लोगों को क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। तो फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, मैंने 6 लिया तो 1 to 6 की रेंज में जाओगे, सो मैंने यहाँ पे आई की वैल्यू ली 1, कहाँ तक जाओगे, 6 को भी इंक्लूड करोगे, इसलिए इक्वल टू साइन आएगा, टिल वैल्यू ऑफ आई इंक्रीमेंट। ओके, एंड फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, इफ अगर उस पर्टिकुलर नंबर को आई की रेंज में से किसी भी नंबर के साथ मैंने डिवाइड किया एंड इफ आई गेट अ रिमाइंडर 0, देन मुझे वो नंबर प्रिंट करना है। अभी सी मैंने इसको फॉर लूप के अंदर ही प्रिंट किया है, क्यों, बिकॉज आई वांट ए रेंज इनसाइड ए रेंज, करेक्ट है ना, मल्टीपल नंबर्स आ रहे हैं 1 to 6 की रेंज में, फिर से रेंज आ रही है, सो पुट इट इनसाइड ए फॉर लूप, सेव करो, कंट्रोल आर रन करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर दिया 12, सी इट गिव्स मी 1 2 3 4 6 एंड 12। ओके, कोई भी नंबर दे दो तुम लोग, उसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर्स आ जाएंगे, इट्स 1 3, सपोज मैंने यहाँ पे दिया 4, इट्स 1 2 4, सपोज मैंने यहाँ पे दिया 6, इट गिव्स मी 1 2 3 एंड 6। ओके, सो इस वे से आएगा तुम लोगों का फैक्टर्स ऑफ एंटर नंबर, क्लियर है। नेक्स्ट, write a program to check whether, write a program to check whether
entered number is, write a program to check whether entered number is perfect, it's a perfect or not perfect, perfect or not perfect. So first thing, tell me what is the meaning of perfect. So there are two definitions for perfect. ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स की अगर सम करो, फॉर एग्जांपल 6, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6? इट्स 1 2 3, सम करो 1 + 2 + 3 यू गेट 6 अगेन, ओके। सो ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स की अगर एडिशन करे तो वही नंबर मिलेगा, और उसके फैक्टर्स की अगर मल्टीप्लीकेशन करे तो वही नंबर मिलेगा। करो 1 × 2 × 3 is 6, ओके, बट देर आर ए कंडीशन और, ओके। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स के एडिशन करो या मल्टीप्लीकेशन करो वही नंबर मिल जाएगा तुम लोगों को। सो दैट इज द परफेक्ट नंबर, ओके। सो अभी मेरे पास दो कंडीशन है, एक तो सम भी आनी चाहिए, करेक्ट है ना, एंड मल्टीप्लीकेशन भी आनी चाहिए। तो सम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लिया मैंने सम, जिसको इनिशियलाइज किया 0 से। मल्टीप्लीकेशन स्टोर करने के लिए वेरिएबल लिया 1, उसको इनिशियलाइज किया 1 से। व्हाई? बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में कोई भी वैल्यू हो उसको 1 से इनिशियलाइज करना है, एंड सम में कोई भी वैल्यू उसको 0 से इनिशियलाइज करना है, ओके। सो यहाँ पे आने के बाद अगर डिवाइड हो रहा है तो सम इक्वल टू होगा सम प्लस दैट पर्टिकुलर नंबर, ओके, एंड मल्टीप्लीकेशन होगा मल्टीप्लीकेशन इनटू दैट पर्टिकुलर नंबर। डन। अभी हम लोग को फाइनल सम एंड मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो पूरा फॉर लूप से इससे बाहर आ जाओ। यहाँ पे आने के बाद इफ माई वैल्यू ऑफ सम इक्वल टू माई नंबर, और my multiplication of number equal to it's that particular number, then तुम लोग यहाँ पे प्रिंट करोगे number is perfect, so slash n number is perfect, it's a perfect, otherwise नहीं तो, and that is the else part, so यहाँ पे लिखना है else enter it's printf number not perfect slash n number not perfect। डन, जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर रन करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर लिया मैंने 6, इट गिव्स मी नंबर नॉट परफेक्ट, व्हाई? इट्स अ परफेक्ट नंबर ना। हाँ, सो सी हम लोगों ने गलती किया यहाँ पे, जब भी तुम लोग फैक्टर्स निकालते हो ना तो उस नंबर को इंक्लूड मत करो इन केस ऑफ परफेक्ट नंबर। सो हटा दो यहाँ से इक्वल टू साइन, बिकॉज आई वॉन्ट ए 1 2 3 ओनली ना, 6 नॉट इंक्लूड करना है। सेव करो, कंट्रोल आर रन करो। वेट, सपोज नंबर लिया मैंने 6, आ गया नंबर इज परफेक्ट, फिर से रन करना है। मैंने यहाँ पे लिया नंबर इज परफेक्ट, 28 होता है, नंबर इज परफेक्ट। मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, नंबर नॉट परफेक्ट, ओके। सो इस वे से आएगा तुम लोगों का परफेक्ट का लॉजिक। क्लियर है? डन। नेक्स्ट आएगा राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर entered number is prime or not prime। write a program to check whether entered number is prime or not prime। so prime का मीनिंग क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको सिर्फ 1 से एंड वो खुद नंबर खुद से डिविजिबल होगा, दूसरे कोई भी नंबर से वो डिवाइड नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल 2 1 एंड 2 से डिवाइड होगा, 3 1 एंड 3 से ही होगा, 5 1 एंड 5 से होगा, 7 1 एंड 7 से होगा, 11 1 एंड 11 से होगा। सो दीज आर द प्राइम नंबर जो खुद से एंड उसी नंबर से डिवाइड होते हैं। तो हम लोग को उसी का एक प्रोग्राम करना है यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे लिया इट्स इंक्लूड stdio.h, यहाँ पे लिया इट्स वर्ड में नंबर लेना यूजर से, वो लिया मैंने इट्स n, ओके। देन आंसर स्टोर करना है मुझे। सो आंसर स्टोर करने के लिए यहाँ पे फॉर लूप में रन करने के लिए एक वेरिएबल लिया i, एंड सी अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मुझे ना फिलहाल प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है। सो पहले हम लोग देखते हैं एरर क्या आती है, देन बताती हूँ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। सो यूजर से एक नंबर लेना है। सो प्रिंटफ में यहाँ पे लिया मैंने एंटर एनी नंबर, ओके। स्कैन करना है उस नंबर को। सो इट्स स्कैन इट %d, एंड दैट पर्टिकुलर नंबर दैट इज इट, ओके। अभी यहाँ पे क्या करना है तुम लोगों को, फॉर लूप में जाना है, i इक्वल्स टू सी। अभी प्राइम का मीनिंग क्या होता है? 1 से एंड खुद से डिवाइड होगा। सो 1 से एक्सक्लूड कर दो, दैट इज 2। कहाँ तक? नंबर को भी एक्सक्लूड करो, इसलिए लेस देन लिया मैंने, तब तक i का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे लिखूंगी इफ माई पर्टिकुलर नंबर को अगर इस रेंज में से किसी भी नंबर ने डिवाइड किया, सी प्राइम का मीनिंग क्या होता है? डिवाइड नहीं होना चाहिए, बट अगर उसने डिवाइड किया तो यहाँ पे मैं मैसेज लिखूंगी नंबर नॉट प्राइम, नंबर नॉट प्राइम, ओके। अदरवाइज नहीं तो
यहाँ पे आएगा एल्स प्रिंटफ एंड यहाँ पे लिखूंगी नंबर इज प्राइम। डन। जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर रन करो। सी इसमें क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नंबर दिया ये इतना हैंग क्यों हो रहा है। सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर दिया दैट इज 7। सी क्या बोल रहा है, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। आई नो नंबर इज प्राइम, बट कितनी बार मैसेज दे रहा है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज आप लोगों ने मैसेजेस फॉर लूप के अंदर लिखे। जितनी बार फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार मैसेज एग्जीक्यूट करा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिया था 7, करेक्ट है। सो चेक करते क्यों आता है वो। आई इक्वल्स टू 2, 2 लेस देन 7 कंडीशन करेक्ट है। 7 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आता है, नो, इसलिए उसने मैसेज दिया नंबर इज प्राइम। देन एन आई का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 लेस देन 7 है, यस। 7 मॉड्यूलस 3, रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता, सो इट गिव्स मी नंबर इज प्राइम। देन आई का वैल्यू हो जाएगा 4, 4 लेस देन 7 है, 7 मॉड्यूलस 4, रिमाइंडर 0 आता है, नहीं आता, इट गिव्स मी नंबर। सो इस वजह से जितनी बार मैसेज आएगा उतनी बार एग्जीक्यूट करता जाएगा, कंडीशन जितना ट्रू उतना मैसेज प्रिंट करता जाएगा। सो मुझे ये जो रिपीटेशन है ना वो अवॉइड करना है, एंड रिपीटेशन अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी एक काउंटर एंड उसका वैल्यू इनिशियलाइज कर दूंगी 0। ओके, सी कोई भी वैल्यू दो, तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है। मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर वो नंबर 0 से डिवाइड होता है तो काउंटर का वैल्यू इंक्रीमेंट करो, एंड इफ का क्लोज किया, फॉर लूप का यहाँ पे क्लोज कर दिया। सी क्या बोला, अगर वो नंबर काउंटर डिवाइड हो रहा है तो उसका इंक्रीमेंट होना चाहिए। सो इंक्रीमेंट कब हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड मीन्स क्या, नंबर नॉट प्राइम। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, इफ माई वैल्यू ऑफ काउंटर इक्वल टू 0। इसका मीनिंग क्या होता है, वो इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो काउंटर का वैल्यू 0 होगा। अगर नहीं हो रहा है देन नंबर प्राइम ना, इक्वल टू 0 होता है तो नंबर इज प्राइम। तो मैं यहाँ पे कंडीशन उल्टी देती हूँ। अगर काउंटर का वैल्यू ग्रेटर देन होता है 0 तो उसका मीनिंग है नंबर नॉट प्राइम, अदरवाइज मीनिंग होगा नंबर इज प्राइम। क्लियर है सबको। जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर रन करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर दिया 7, इट गिव्स मी नंबर इज प्राइम। फिर से रन किया मैंने यहाँ पे 8, इट गिव्स मी नंबर नॉट प्राइम। कोई भी नंबर दे दो, इट्स 99, इट गिव्स मी नंबर नॉट प्राइम। सो फॉर एग्जाम्पल दिया 11, नंबर इज प्राइम। ओके, सो इस वे से करना है तुम लोग को प्राइम का। ये इसी प्राइम का प्रोग्राम 2-3 वे से कर सकते हो तुम लोग, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट एंड इजिएस्ट वे, जिससे तुम लोग को इजिली अंडरस्टैंड होता है हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम नंबर। ओके, डन। ओके, सो दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स है जो हम लोग फॉर लूप थ्रू कर सकते हैं। प्राइम का होता है, परफेक्ट का होता है, फैक्टोरियल देखा हम लोगों ने, उसके बाद सम निकालना देखा, प्रोग्राम्स को रेंज में से रेंज कैसे ढूंढते हैं वो निकाल दिया। ओके, सो दिस इज अबाउट द बेसिक फॉर लूप। तुम लोग तुम्हारे लेवल पे थोड़ा फिबोनाची सीरीज का ट्राई करो, अगर होता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं तुम लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉर लूप, बेसिक फॉर लूप। नेक्स्ट सेशन हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे, सो दैट इज ऑन ए नेस्टेड फॉर लूप। उसका सेशन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।